Hello students, myself Professor Suresh Hasbe from SDSM Junior College Palghar welcomes you all in today's session. Today we are going to discuss 12th physics from paper 2, topic electromagnetic induction. First of all, we have to discuss about the concept of electromagnetic induction. Okay, to study the concept, first observe this video. Electromagnetic induction. Here we have taken one circular coil C, which is connected to a galvanometer G. These are the wires, are connecting wires are there. It's a very sensitive device. We are not connected any battery in between this one. These are only wires are connected here. Now consider a bar magnet is there. Now when we brought a bar magnet facing N pole towards the coil, we are getting some deflection there. Okay, have you observed the deflection? Now if we move away, then also we are getting the deflection opposite to the previous one. Got it? The deflection in the galvanometer shows in opposite direction. This means current is set up in the opposite direction. Got it? Here, remember that when magnet is moved towards the coil, we are getting deflection. Look at the galvanometer. Same happens when we are taking that is a S pole. Here it is, S pole is there. If we take the S pole there, then also we are getting the similar deflection. That you have to remember there. Okay, that is a S pole facing towards the coil. We are getting the deflection. Now, if we move towards the coil, look at the coil, here it is. Then what we are getting? The current produced by the relative motion of the coil or the magnet is called an induced current and is said to be set up by an induced electromotive force. Means we can able to say that EMF is also induced as like a current is induced there. करंट इंड्यूस हुआ मतलब EMF भी इंड्यूस हुआ, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं. गॉट इट? ये कब हुआ है? व्हेन magnet is moving towards the coil or moving away from the coil. यदि मैग्नेट एक जगह पे रहता है तो वहां पे कुछ भी EMF इंड्यूस नहीं होता है. तो ये हम लोगों को अच्छे से याद रखना है. तो ये जो टर्म है, द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन अ कॉइल in the closed circuit by the relative motion of the magnet and the coil is called the phenomenon of electromagnetic induction. Electromagnetic induction मतलब क्या है फिर? The production of an induced EMF or induced current in the coil in a closed circuit by the relative motion of the magnet and the coil is called phenomenon of the electromagnetic induction. यहाँ पे जो वर्ड है रिलेटिव मोशन, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे मैग्नेट मूव हो जाए या कॉइल मूव हो जाए, दोनों में यहाँ पे EMF इंड्यूस होता है. ये जो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने डिस्कस किया, इसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज अ कॉइल मैग्नेट एक्सपेरिमेंट. यहाँ पे कॉइल है और हम लोग ये मैग्नेट है, इसीलिए कॉइल मैग्नेट एक्सपेरिमेंट इसको हम लोग बोलते हैं. गॉट इट? ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेनन, यहाँ पे एन पोल या एस पोल कुछ भी हो जाए तभी भी हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड मिलता है. ये एन पोल स्टेशनरी रखा यहाँ पे, जो अभी आप लोगों को दिख रहा है वो स्टेशनरी रखा तो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर का 0 आता है. ठीक है, वो याद रखो. तो EMF कब इंड्यूस होगा?
when magnet is moving away or moving towards the coil, ठीक है, तब यहाँ पे ये गैल्वानोमीटर में हम लोगों को करंट दिखता है। गॉट इट? समझ में आ रहा है ये कॉइल मैग्नेट एक्सपेरिमेंट। ओके, नाउ सिमिलरली वी विल डिस्कस अबाउट द अनदर टर्म्स। अब यही जो एक्सपेरिमेंट था ये फैराडेज ने किया था, ठीक है। नाउ Faraday have done this experiment, that is a coil magnet experiment. Similarly, he have done the another one experiment, that is a coil experiment is there. Okay, वो हम लोगों को अभी देखना है। That is to study the Faraday's laws of electromagnetic induction. First, we will observe about these terms are there. तो अभी हम लोग Faraday's का coil experiment observe करने वाले। Now look at the one coil is there. Here we have connected one battery to this coil. अब यदि आप लोगों ने ऑब्जर्व किया तो जैसे इसमें से करंट पास होगा, एट दैट टाइम इट इज एक्टिंग एज लाइक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इट विल प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो रिंग दिख रही है आप लोगों को, दीज आर नथिंग बट द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। गॉट इट? नाउ अब यहां पे हम लोग दूसरा कॉइल लेते हैं। व्हेन अनदर कॉइल कनेक्टेड टू द गैल्वानोमीटर, अब यहाँ पे कुछ ये यहाँ पे हम लोगों ने एक बैटरी कनेक्ट किया पहले कॉइल को, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, ठीक है। और दूसरे कॉइल को हम लोगों ने कनेक्ट किया है गैल्वानोमीटर, दैट इज अ सेकेंडरी कॉइल। दे आर नॉट डायरेक्टली टचिंग टू द वन अनदर, ये दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली टच नहीं हो रही है, ठीक है। तो वन कॉइल वी हैव प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अदर कॉइल, एक कॉइल में दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। अब यहाँ पे गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन जो है वो आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो, क्या है देखो, डिफ्लेक्शन इज 0, सेंटर पे है गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन, ये सेंटर पे डिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। तो जैसे हम लोग इसका मूवमेंट करेंगे एक कॉइल का, कोई भी एक कॉइल का, तो वहां पे डिफ्लेक्शन स्टार्ट होगा। गॉट इट? तो वही हम लोगों को अभी चेक करना है। नाउ मूव द कॉइल, दैट इज अ सेकेंडरी कॉइल मूव हो रहा है। अब देखो जैसे ये मूव हो रहा है, डिफ्लेक्शन इन द कॉइल दैट वी हैव टू ऑब्जर्व देयर। अब देखो ये यहां से यहां तक शिफ्ट हुआ है, तो वहां पे डिफ्लेक्शन क्या है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन हम लोगों को दिख रहा है। जैसे ये रुकता है, ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड में है, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन है। अब देखो ये 0, जैसे ये कांस्टेंट पोजीशन पे रखा 0 होने वाला है, जैसे रुकेगा वैसे 0, जैसे मूवमेंट में है तब हम लोगों को वहां पे डिफ्लेक्शन दिखता है। गॉट इट? तो ये हम लोगों को अच्छे से याद रखना है कि व्हेनेवर देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस सेकेंडरी कॉइल, अब हम लोगों ने ये प्राइमरी कॉइल मूव करना चालू किया, ठीक है। तब देखो सेकेंडरी कॉइल रेस्ट पोजीशन पे है, प्राइमरी कॉइल मूव हो रहा है, देन ऑल्सो वी आर गेटिंग द डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो any one, that is a primary or a secondary, any one of them is moving, then we are getting the deflection, तभी हम लोगों को ये deflection मिलता है। लेकिन when the coil is placed at a rest near to the primary coil there, तब हम लोगों को वहां पे 0 deflection था। तो ये कंटिन्यूअसली मूवमेंट हो गया, तो हम लोगों को डिफ्लेक्शन होता है देखना है आप लोगों को। जैसे ये नजदीक आता है एक साइड में डिफ्लेक्शन होता है, अवे जाता है तो दूसरे साइड में डिफ्लेक्शन होता है, ये भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। गॉट इट? नाउ इन दिस व्हेन दैट इज व्हेन DC current is there, it is connected here, then that whatever the EMF induced here, okay, that is considered or called as a dynamically induced voltage। यहाँ पे जो EMF या वोल्टेज जनरेट हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डायनेमिकली इंड्यूस्ड वोल्टेज। यही हम लोग या ऐसे ही एक्सपेरिमेंट हम लोग, ये जो बैटरी है एवरेडी का, उसके जगह पे AC पावर सप्लाई कनेक्ट करते, तभी भी हम लोगों को वैसे ही EMF प्रोड्यूस होता है। बट एट दैट टाइम, अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है वो आप लोगों को सोचना है। DC के लिए हम लोगों को कॉइल का मूवमेंट करना जरूरी था, लेकिन AC के लिए, AC मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट,
मीन्स वो अल्टरनेटली चेंज होता है, और उसकी वजह से यहाँ पे जो वोल्टेज जनरेट होगा इसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिस्टिकली इंड्यूस्ड वोल्टेज। गॉट इट? तो डायनेमिकली और स्टैटिस्टिकली ये याद रखना है, एंड दिस इज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय द साइंटिस्ट Faraday, and we are discussing about Faraday's first law of electromagnetic induction. तो फर्स्ट लॉ क्या है वो देखो, that is when a conductor links with a changing magnetic flux there is a voltage induced in it. ठीक है ना? अब यही कॉइल अभी सेकंड पोजीशन पे, अब देखो इसी को हम लोगों ने थोड़ा और मूवमेंट दे दिया, अब ये फास्ट मूवमेंट हो गया। तो इसको ऑब्जर्व करना है आप लोगों को, वोल्टेज या गैलोनमीटर के डिफ्लेक्शन पे ऑब्जर्व करो एज वी आर मूविंग रैपिडली दिस कॉइल। कॉइल को जितना रैपिडली हम लोग मूव करेंगे तब हम लोगों को क्या ऑब्जर्व होता है ये आप लोगों को देखना है। ठीक है, तो मूवमेंट हो रहा है रैपिडली, तो देखो डिफ्लेक्शन बढ़ते ही जा रहा है। ओके, दैट मींस जितना रैपिडली हम लोग मूवमेंट करेंगे उतना उसमें डिफ्लेक्शन बढ़ते जाएगा। गॉट इट? एंड दैट इज कंसिडर, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इंक्रीजेस। ये एरो बता रहा है कि इंक्रीजेस एज इंड्यूस्ड वोल्टेज इंक्रीजेस देयर। ओके, तो जैसे जैसे फ्लक्स लिंकेज इंक्रीज होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ वोल्टेज भी इंक्रीज हो रहा है। गॉट इट? वो हम लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा है। गॉट इट? मतलब रैपिडली मूवमेंट के बाद हम लोगों को क्या मिला? दैट इज इंक्रीज, एंड दैट इज नथिंग बट द फैराडेज सेकेंड लॉ। वही फैराडे का सेकेंड लॉ है। गॉट इट? तो फैराडे का सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है देखो, Faraday's second law of electromagnetic induction: magnitude of induced EMF in the conductor is directly proportional to the rate of change of flux link with respect to time. Got it? तो यही दोनों लॉ मैंने सेपरेटली अभी हमारे बुक के हिसाब से लिखे। ठीक है, Faraday's laws of electromagnetic induction जो अभी हम लोगों ने वीडियो में ऑब्जर्व किया वही लिखा है। क्या था फर्स्ट लॉ देखो, whenever there is a change in magnetic flux takes place EMF is induced, that is a first law there। मतलब जब भी कहां पे भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा कोई भी कंडक्टर के लिए तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है। ये सेंटेंस अच्छे से याद रखना है, जब भी whenever there is a change in magnetic flux takes place EMF is induced। Got it? And look at the second law क्या है देखो, the magnitude of induced EMF produced in the circuit is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the circuit। मतलब जितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ है, ओके, उसका जो रेट होता है, दैट इज द रेट मींस हाउ मच चेंज टेक्स प्लेस देयर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, उसके ऊपर ईएमएफ कितना जनरेट होने वाला है ये डिपेंड करता है। वो हम लोगों ने देखा जितना रैपिडली मूवमेंट हुआ कॉइल का उतना ईएमएफ बढ़ता गया। गॉट इट? दीज आर द टू conclusions from the previous video, or that is a Faraday's experiments। Faraday ने दो एक्सपेरिमेंट करके ये conclusions निकाले, कॉइल मैग्नेट एक्सपेरिमेंट एंड कॉइल कॉइल एक्सपेरिमेंट देयर। गॉट इट? ये समझ में आ रहा है? तो Faraday's लॉ। अब ये सेकंड लॉ जो है मैथमेटिकली हम लोगों को क्या है, मैथमेटिकली हम लोगों को ये वेरीफाई करना है। एंड क्या वेरिफिकेशन से देखो, Faraday's second law, if phi, that is the magnetic flux linked with the coil at any instant t, तो मैग्नेटिक फ्लक्स phi हम लोगों ने कंसीडर किया। now flux linked with the coil at any instant time, then induced EMF is according to the Faraday's second law, E is induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux। E is directly proportional to d phi by dt। ओके, इसको हम लोगों ने इक्वेशन 12.1 कंसीडर किया। नाउ यदि हम लोगों ने ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दिया, देन वी आर टू ऐड दैट इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, देन वी आर गेटिंग E is equal to k d phi by dt, where k is constant of proportionality। okay, now if E
phi and t are measured in the same system of units, means MK system or CJ system. At that time, the value of proportionality constant K is equal to 1. तो K is equal to 1 हम लोगों को मिलता है when we are using all these quantities in a same system of units. तो हम लोगों को यही इक्वेशन क्या होगा, E is equal to d phi by dt because K is equal to 1. Got it? That is equation 12.2. तो ये है फैराडेज लॉ, E is equal to d phi by dt. Got it? अब देखो, if we combine this expression with the first law, we get, okay, फर्स्ट लॉ के साथ हम लोगों ने कंबाइन किया तो E is equal to minus d phi by dt. नाउ यहाँ पे निगेटिव साइन आता है बिकॉज डिप्लेक्शंस आर अपोजिट, डिप्लेक्शन एक दूसरे के अपोजिट जा रहा था, तो इसीलिए यहाँ पे E is equal to minus d phi by dt आ गया. Got it? If phi is the flux associated with a single turn, अब देखो ये phi जनरल टर्म है, अब यहाँ पे phi dash हम लोगों ने लिया is the flux associated with the single turn, then the total magnetic flux phi for the coil consisting of n turns is, यदि कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स है तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, phi is equal to n into phi dash. phi dash एक जो सिंगल टर्न है, एक लूप का हम लोगों ने मैग्नेटिक फ्लक्स लिया था, तो यही इक्वेशन 12.3 कैन बी रिटन एज E is equal to minus n d phi dash upon dt. Got it? तो ये in terms of one single loop we are getting this one. That is equation 12.4. Now in SI units, E is measured in volt and d phi by dt is measured in Weber per second because unit of phi magnetic flux is a Weber. तो हम लोगों को ये फैराडेज लॉ याद रखना है. Got it? E is equal to, generally you have to remember about this equation 12.3, that is E is equal to minus d phi by dt. Okay, general expression there. That is for the one loop. यदि हम लोग number of loops increase करते तो E is equal to minus n d phi dash by dt. ये हम लोगों को याद रखना है. Got it? फैराडेज लॉ समझ में आ रहा है? ये सेकंड प्रूफ है, प्रूफ ऑफ द सेकंड लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ देयर. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट वन. ये जो नेगेटिव साइन आया, ये एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों को दूसरा लॉ मिला, दैट इज द साइंटिस्ट लेंज हैव गिवन द लॉ व्हाई देयर इज अ नेगेटिव साइन इज देयर इन अ फैराडेज लॉ. ओके, तो लेंज लॉ क्या है देखो. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द सर्किट is such that the magnetic field produced by the induced current opposes the change in the magnetic flux that induces the current. जिस मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज की वजह से करंट जनरेट हुआ, वही उसको अपोज करता है. दैट इज अ लेंज लॉ, दैट यू हैव टू रिमेंबर देयर. ये अच्छे से याद रखना है. ओके, फिर से एक बार मैं रीड करता हूं. देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the direction of induced current in the circuit is such that the magnetic field produced by the induced current, okay, ये magnetic field produced by the induced current opposes the change in the magnetic flux that induces the current. Got it? Okay, साथ में हम लोगों को ये भी याद रखना है, the direction of induced EMF is same as that of the induced current. तो इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ दोनों का डायरेक्शन सेम है. तो अब ये अपोजिट कैसे होता है और कैसे वर्क होता है, ये हम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जर्व करना है. ठीक है, तो अभी मैं फिर से एक वीडियो लगाता हूं, तो अभी ऑब्जर्व करो. नाउ अब देखो, हियर वी हैव टेकन दैट द वन मैग्नेट एंड द कॉइल. जो एक्सपेरिमेंट फैराडेज ने लिया था वो हम लोगों ने ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे. तो ये एक मैग्नेट और एक कॉइल है, यहाँ पे हम लोगों ने एक गैल्वानोमीटर कनेक्ट किया और ये बल्ब है. ठीक है, जैसे ये करंट पास होगा यहाँ पे बल्ब या गैल्वानोमीटर का करंट का इंडिकेशन डायरेक्शन इंडिकेट होगा. ठीक है, अब देखो, नाउ व्हेन एन पोल इज फेसिंग टुवर्ड्स द कॉइल, कॉइल के नजदीक जा रहा है, तो हम लोगों ने एक लूप कंसीडर किया, उसमें जो करंट जनरेट होता है वो करंट
एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, दैट इज व्हाट एवर द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल, एक कॉइल के अंदर का जो करंट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ऑडिट, यहाँ पे जो करंट जनरेट हो रहा है वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और ये मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है वो दूसरा है। तो ये मैग्नेट इज फेसिंग n pole towards the coil, and the current generated here, that is also generating the n pole, that's why they are opposing each other, ये एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, ऐसे ये डायग्राम इंडिकेट कर रहा है। ऑलराइट, तो करंट का डायरेक्शन ऑब्जर्व करो, करंट का डायरेक्शन कैसे देखो, इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, ऑब्जर्व करो अच्छे से। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट जनरेट हुआ, गॉट इट, मींस एन पोल इज फेसिंग, अभी एन पोल हम लोगों ने अवे लेके गए। ओके, नाउ रिमेंबर हियर इट इज, इफ मैग्नेट इज मूविंग अवे, तो अवे लेके गए, तो अब करंट का डायरेक्शन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो ऑब्जर्व करना है, हम लोग मैग्नेट अवे लेके जा रहे हैं। गॉट इट, तो अब देखो एक लूप हम लोगों ने मैग्नीफाई करके दिखाया है यहाँ पे, तो एक लूप में यहाँ पे करंट का डायरेक्शन हो गया क्लॉकवाइज, और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ क्लॉकवाइज करंट की वजह से, एंड दैट इज जनरेटिंग एस पोल। गॉट इट, अब देखो करंट का डायरेक्शन है clockwise and it is generating s pole, and magnet is facing n pole. तो when magnet is moving away at that time, यहाँ पे clockwise current generate होता है coil में। Got it? When magnet is moving away, n pole is moving away, then there is a generation of a s pole. In previous condition what happens? इसके पहले कंडीशन में हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हम लोगों ने क्या देखा था, देखो यहाँ पे n पोल है, n पोल व्हेन मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल एट दैट टाइम, मूविंग टुवर्ड्स मैंने बोल रहा हूं, तो यहाँ पे n पोल जनरेट हो रहा है, दोनों एक दूसरे को अपोज हो रहा है। ओके, दे आर रिपेलिंग ईच अदर। गॉट इट, व्हेन मैग्नेट इज मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल, वही हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर किया, तो ये मैग्नेट इज मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल एट दैट टाइम, then there is a generation of a s pole and the direction of the current is also different। करंट का डायरेक्शन हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, तो करंट का डायरेक्शन कैसे, यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज करंट इज जनरेटेड एट द सेम टाइम। यदि आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा तो ये एमीटर का जो पोजीशन है या गैलोनमीटर का जो पोजीशन है वो भी आप लोगों को ऑब्जर्व करना होगा, दैट इज अपोजिट टू द प्रीवियस वन। पहले आप लोगों को डिफ्लेक्शन है राइट हैंड साइड में था, अब डिफ्लेक्शन लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है। ओके, व्हेन मैग्नेट इज मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल। गॉट इट, ये आप लोगों को अच्छे से ऑब्जर्व करना था। गॉट इट, तो कॉइल जैसे मैग्नेट अवे जा रहा है, वहां पे हम लोगों को करंट का डायरेक्शन देखो, दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, डिफ्लेक्शन, अब ये दोनों रेस्ट पोजीशन पे आ गया, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 हो गया। गॉट इट, तो हम लोगों को वो टर्म अच्छे से समझनी है। गॉट इट, जो फैराडेज ने एक्सपेरिमेंट में बताया, फैराडेज लॉ ने बताया। गॉट इट, समझ में आ रहा है ये फैराडेज लॉ क्या था, वो फिर से एक बार देखो, सॉरी लेंज लॉ, लेंज लॉ में क्या बताया था, दैट इज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द सर्किट इज सच दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इंड्यूस्ड करंट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड देयर। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा था। गॉट इट, समझ में आ रहा है ये, तो ये अच्छे से हम लोगों को याद रखना है। गॉट इट, तो in today's session we have discussed about some term, that is a revision। okay, we have discussed about the Faraday's law, क्या है, whenever there is a change in magnetic flux takes place, EMF is induced। got it, that's a Faraday's first law। okay, now second law देखो क्या है, the magnitude of induced EMF produced in the circuit is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked to the circuit। That is Faraday's second law। And third one that we have discussed, that is a Lenz law there। क्या है Lenz law देखो, the polarity of induced EMF is such that it tends to produce a current which opposes the change in magnetic flux that produced it। means current magnetic flux को oppose करता है। got it, these are nothing but the three laws that we have discussed in today's session। got it,
तो हम लोगों को ये अच्छे से याद रखना है कि हम लोगों ने आज क्या स्टडी किया. Got it? Thank you for watching. Please like, share and subscribe.